Alright, my dear friends, we now begin with a new chapter, and that is called as Ionic Equilibrium. दोस्तों दो शब्द है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. पहला शब्द है आयोनिक और दूसरा शब्द है इक्विलिब्रियम. So first of all is we'll try to understand what exactly is ionic equilibrium all about. Simple words, what happens is it is an equilibrium, मतलब balance between the ions and the unionized molecules. And that is basically called as ionic equilibrium. Right? एक सब्सटेंस लेता हूं मैं and I treat it in a particular solvent. जब मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यस, वाटर. तो जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा सब्सटेंस आयंस में परिवर्तित हो जाए. कुछ हिस्सा उसका आयंस में परिवर्तित होगा और कुछ नहीं होगा. और इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल. कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेगा, वो आयंस में नहीं टूटेगा. सो दैट इज अनआयोनाइज्ड. और जिसका आयनाइजेशन हुआ है वो क्या देगा? आयंस देगा. सो इस तरीके से there is an equilibrium between the ions and the unionized molecules, and that is basically called as what? Ionic equilibrium, which is nothing but the title of this particular chapter. Am I very clear with this? Now, I want you to understand what are the key factors, okay, which are going to be considered in this particular chapter. Okay, the different equilibria that we need to learn in this particular chapter is all about. The first one is the H plus ions, the OH minus ions, and the unionized water molecules. This is the first category that we are going to learn. Water molecule, you know the formula, it is H2O. The entire amount of H2O is not going to split up into H plus and OH minus. Some part is going to split up, so that is going to give you H plus and OH minus ions, and some will remain in the molecular form itself, that means in the form of H2O. And therefore we have H plus ions, we have got OH minus ions and water molecules. Clear? Next is we are going to discuss about the ionization of weak acid and weak bases. This is what we are going to discuss. Weak acids and weak bases. Then we are going to discuss about the reaction between the ions of the salt and ions of the water. Every salt, my dear friends, is made up of cation as well as anion, and that is nothing but ions. Cation is positively charged, anion is negatively charged. Water also has its ions, H plus ions and OH minus ions. So how they react with each other, okay, that is also we are going to consider in this particular chapter. And of course we are going to consider some solid salt. And how does their ions behave in water? Okay, so this is basically the key areas on which we are going to focus as far as this particular chapter is concerned. Alright, so once again I give you a recap about this introduction part. We are starting with a chapter called as Ionic Equilibrium. Now here it is nothing but that it is an equilibrium which is going to be a form between the ions and the unionized molecules. So if I have a molecule, some part of it undergoes ionization, so it forms ions. The rest of it doesn't form ions because it doesn't undergo ionization. So there is an equilibrium between the two, and that equilibrium is called as ionic equilibrium. And the key areas on which we are going to focus in this particular chapter, the four basic equilibria are nothing but, first is H plus ions, the OH minus ions, and the unionized water molecule. Second one, we are going to talk about the ionization of the weak acids and weak bases. Next is we are going to consider the reaction taking place between the ions of the salt and the ions of water. And the last one is we are going to talk about solid salts and its ions in water. Alright? So this is what the introduction of this particular chapter is. So you got the central idea of what we are actually going to discuss in this particular
chapter. Yes, everyone? Very good. All right. So we now begin with the actual chapter. So we begin with a very simple term, and that is called as electrolyte. Now, what is an electrolyte? Simple words or simple definition of electrolyte is nothing but कि ये एक substance है which produces ions on ionization in aqueous medium. We generally talk about aqueous medium. It can be any other medium also, but then in this particular chapter we talk about aqueous medium. So electrolyte is a substance which produces what? Ions on ionization in aqueous medium. Okay? So जो भी ions बनाता है aqueous medium, aqueous मतलब water में, okay, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Electrolyte. Okay? इसका मतलब बात क्लियर हो गया कि when I talk about a non-electrolyte, what is a non-electrolyte all about? इसका opposite कर दीजिए दोस्तों, non-electrolyte का opposite, and that is a substance which does not undergo ionization. In an aqueous medium. Is called as a non-electrolyte. क्या बोलेंगे इसको? Non-electrolyte. ये सब्सटेंस जो आयनाइजेशन होता है, जिसका आयनाइजेशन होने से आयंस मिलता है, ओके, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. नॉन इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अंडरगो आयनाइजेशन, यानी आयंस बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, हम इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. कितने प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है, और वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन. Now, when I use the word extent of ionization का मतलब होता है कि कितने हद तक उसका आयनाइजेशन होता है. ओके, उसके आधार पर इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इनटू टू कैटेगरीज. पहला कैटेगरी है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कैटेगरी है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, पहला कैटेगरी कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, और दूसरा कौन सा है? वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में. आइदर वी से कंप्लीटली आयनाइज्ड और वी से के इट इज ऑलमोस्ट आयनाइज्ड. कंप्लीटली आयनाइज्ड मतलब 100% आयनाइज्ड है. ओके, या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली. कभी कभी 100% 100% आयनाइजेशन मुमकिन नहीं होता ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स. तो समझो 95%, 98%, 99% इतना हुआ, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड. ओके, टू गिव ऑफ कोर्स आयंस इन एक्वेयस मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, एग्जांपल देता हूं मैं आपको. HCl. Okay, I can give an example of NaOH. HCl gives you H plus plus Cl minus. NaOH will say give you Na plus plus OH minus. ये सब strong electrolyte है. Okay, तुरंत डिसोसिएशन होगा, काफी हद तक डिसोसिएशन होगा इसका. Okay, इसको हम लोग strong electrolyte बोलते हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या बोलेंगे? देखो, आयनाइजेशन तो होगा, ये याद रखिएगा. ऐसा मत बोलना कि इधर आयनाइजेशन होता है इधर नहीं होता. वो तो इधर था, किधर? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में. लेकिन ये हम लोग ने क्या बोला? वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी आयनाइजेशन तो होगा लेकिन उसका कम हद तक होगा. सो द वन विच इज पार्शियली आयनाइज्ड or ionization takes place to a smaller extent. Okay, that is called as a weak electrolyte. For example, CH3COH, it gives you CH3CO minus as well as H plus. Okay, उसी प्रकार से NH4OH, ammonium hydroxide, you get NH4 plus plus OH minus.
अब दोस्तों गौर करने की बात यह है कि इस केस में जब आयनाइजेशन पार्शियल हो रहा है, कम हद तक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे कुछ कम प्रमाण में आयंस मिल रहा है और प्लस ज्यादा मात्रा में वो मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। जैसे कि हम लोग बात करें CH3COH का, ओके, तो CH3COH का कुछ हिस्सा आयनाइज हुआ है और इस तरीके से मुझे मिल रहा है CH3CO- as well as H+। उसके अलावा काफी मात्रा में ये CH3COH ऐसा ही रहता है विदाउट डिसोसिएशन, सो दैट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। और इस तरीके से इक्विलिब्रियम सा बन जाता है किसके बीच में, बिटवीन द आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। और इस इक्विलिब्रियम को हम रिलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अ डबल हेडेड एरो। ऐसा आई बात समझ में? इधर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इधर मेजॉरिटी 100% कन्वर्जन हुआ है, या 100% नहीं भी हुआ तो भी इट इज अराउंड से 98, 99%, 96%, तो पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो गया है। तो इधर ऐसा इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं करना है, सो इधर इट्स ओनली अ सिंगल हेडेड एरो एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो इट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन यहां पर तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, okay, because only small amount of them gets converted into ions. Most of them are going to be in the form of unionized molecules, so there has to be a balancing act taking place between these two. That is being shown by means of a double-headed arrow, and that is something what is called as a weak electrolyte. आई बात समझ में सब लोग को? सो पहले हम लोग ने क्या कंसीडर किया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कि ऐसा सब्सटेंस जो आयंस बनाता है, और इस जो आयंस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्वेस मीडियम। और ऐसा सब्सटेंस जिसका आयनाइजेशन ही नहीं होता है, जो आयंस ही नहीं बनाता है इन एक्वेस मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन कंसीडर किया, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ये कितने हद तक उसका आयनाइजेशन होगा। अगर ऑलमोस्ट पूरा हो गया 100% या ऑलमोस्ट 98%, 99% ऐसा हुआ, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका पार्शियल हुआ है, अधूरा हुआ है आयनाइजेशन, कम हद तक आयनाइजेशन हुआ है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक इक्विलिब्रियम सा होता है बिटवीन टू स्पीशीज। ओके, दैट इज वन इज गोइंग टू बी अनआयनाइज्ड एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी आयंस। तो उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है, व्हिच इज गोइंग टू बी शोन बाय मींस ऑफ अ डबल हेडेड एरो। बोलो समझ में आया सब लोग को यहां तक? Everybody absolutely clear? Yes. अब इसके बाद जो नया टॉपिक हम लोग कंसीडर करने वाले वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका सिंबल है अल्फा। इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट undergoing ionization to form ions at equilibrium. Okay, that is called as degree of dissociation. Uska symbol hai alpha. What it means? It is the fraction of the total number of moles of the electrolyte undergoing what? Ionization to produce what? Ions at what? Equilibrium is called as degree of dissociation. यानी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन दोस्तों हम लोगों ने कौन से आधार पे किया था, कितने हद तक आयनाइजेशन हो रहा है। ओके, उसके आधार पे हम लोग ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट किया था। तो अभी अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को बाइफरकेट करना है कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो मुझे ये पता करना जरूरी होगा कि उसका कितने हद तक आयनाइजेशन हो रहा है। और वो पता करने का जो पैरामीटर होता है, द पैरामीटर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन to what extent the ionization takes place is nothing but what? Degree of dissociation, that is alpha. यानी सिंपल शब्दों में दोस्तों, अल्फा के वैल्यू के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू
the moles of the electrolyte which have undergone dissociation divided by the total number of moles of the electrolyte which are present. समझ में आया? That is going to be nothing but alpha. यानी अगर समझो मेरे पास 10 मोल्स है, ओके, कितना है? 10, और उसमें से समझो 3 मोल हैव अंडरगॉन डिसोसिएशन, तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 10, आंसर आएगा 0.3. ओके, तो अल्फा विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू. उस यूनिट सही रहेगा उसको, लेकिन एक वैल्यू रहेगा 0.3. अब फिर उसके आधार पर हम फिर क्लासिफाई कर सकते हैं उसको. आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट इट इज. परसेंटेज अल्फा अगर हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा इनटू 100. ओके, ये भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, इफ C is considered as the molar concentration of the electrolyte which has undergone dissociation at equilibrium, then हम ये बोल सकते हैं कि the equilibrium concentration can be given as alpha into C moles per dm cube. Concentration तो आपको मालूम ही है, it is being expressed in terms of moles per dm cube. ओके, तो अगर C मोलर कॉन्सेंट्रेशन है किसका? इक्विलिब्रियम का. ओके, जिसका डिसोसिएशन होगा और आयंस मिलेगा एट इक्विलिब्रियम, तो उसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? C. ठीक है, समझ में आया आप लोग को? सो दैट इज व्हाट यू कम टू नो अबाउट कितने हद तक डिसोसिएशन हुआ है, और वो जानना क्यों जरूरी है, ताकि फिर हम उसको क्लासिफाई कर सके एज वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वेदर इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. आई बात समझ में सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस.